Good morning, students. Good Good morning morning, to all sir. of you. Good morning. Morning, sir. Good morning, beta. Yes. So once again, Good welcome morning, back. sir. Good morning to everyone. So once again, welcome back in social science subject live class for standard 8. Okay. So Sir. before proceeding to the next topic, just I would like to ask, would you student have any doubt? Is there any Yes, doubt? sir. Please Yes, sir. ask your question first, Prakash. Sir, sir, in that activity which you given yesterday. Hey, Bhagwan. Yes. Good morning, sir. Ask your doubt. Sir, in that activity which you gave yesterday. So what is the doubt? Sir, what we have to do in that? Yes, sir. Okay. Okay. What you have to do in that activity? Good question. Acha. Anushka Roy. Yes, sir. So what you are supposed to do in those activities? Sir, that diagram one activity we are कल जो मैंने दी one थी diagram. वो जो डायग्राम है पूरा का पूरा वो क्या करना है? Draw करना है. ड्रॉ करना है. ठीक है. And also उसके you have to अलावा label it. And we have to label also. यू हैव टू लेबल इट ऑल्सो. तो एक तो सॉइल प्रोफाइल वाला होगा. Yes, sir. ठीक. और एक दूसरा कौन सा था? नीचे वाला कुछ दिया था क्या उसके नीचे? कल ओनली एक ही एक्टिविटी दी थी ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वो कौन सी थी? सॉइल प्रोफाइल का डायग्राम जो पूरा का पूरा पिक्चर है वो ड्रॉ करना है और उसी को क्या करना है? लेबल. यानी जैसा बुक में बना है वैसा का वैसा बनाना है. समझ में आया? Yes, Okay, sir. sir. Yes, sir. आसमी मंथावार. Yes, sir. डाउट क्लियर हुआ? Yes, sir. अब ये बताओ कि डाउट तुम्हें आया क्यों? Sir, I was having कि मतलब उसमें और कुछ नया भी करना है इसलिए. ठीक है. गॉट इट बेटा? Yes, sir. देयर इज नो Sir. डाउट. प्लीज आस्क बेटा. Sir, you tell Neha, I told to change her name, and I told her to attend classes regularly also. टू होम? Sir, to Neha. नेहा. नेहा कुमारी. Yes. Yes, sir. वेयर इज नेहा कुमारी? नेहा कुमारी. So she is not. नेहा कुमारी. वेयर इज नेहा कुमारी? नाउ नॉट प्रेजेंट. ठीक है. Yes, ये sir. एक बड़ा प्रॉब्लम है ना. स्टूडेंट्स आर जस्ट मूविंग अवे. गायब हो जाते हैं फिर बड़ी परेशानी. बेटा देखो क्या है, हम लोग अभी ऑनलाइन मोड में पढ़ रहे हैं. ठीक है. सो ऑल ऑफ यू हैव टू बी रेगुलर, कोऑपरेटिव. ओके. इस जय कोरा से आर यू प्रेजेंट? Yes, sir. स्क्रीन पे तुम्हारा नेम जय कोरासे का जे कैसा दिख रहा है? स्मॉल. Sorry, sir. I will change. Yes, sir. After the class, okay, change it. Okay, sir. Is it clear? Yes, sir.
गुड, Yes, sir. थैंक यू बेटा, थैंक्स जय कोरा से, हैव अ नाइस डे, एंजॉय। चलिए, सो नाउ Thank शैल you, वी sir. प्रोसीड। और कोई डाउट तो नहीं है किसी को? No, sir. ठीक है, आगे बढ़ते हैं, है ना? चलिए, Yes. Yes, sir. सो दिस व्हाट वी वर डूइंग, है ना? ये सेक्शन था जो हम उस समय पर कर रहे थे, ठीक है? Yes. Now is the screen visible? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. This was a section that we have completed yesterday. Okay. Then हम लोग शायद ये वाला सेक्शन शुरू कर चुके थे क्या? No, No, sir. it's okay. No, ठीक है, sir. No, sir. it's okay No, बेटा, है ना? sir. चलो, good. So now the next section that we are going to discuss today is this one. Okay. So before that, a small activity is given here, and what is it? In India, soils are of different types. इंडिया में जो भी अलग अलग प्रकार की सॉइल है उसको डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है? So what are these divisions? In India, soils could be alluvial soil, black soil, red soil, laterite, desertic and montane soil, ठीक है? परंतु जब आप 9th स्टैंडर्ड में जाएंगे, इसमें से बहुत सारा सॉइल टाइप हमें पढ़ने को नहीं मिलेगा, वहां ये किसी और नेम से आएगा, ठीक है? ये चार तो हमें 9th में पढ़ने को मिलेंगे, alluvial soil, black soil, red soil and laterite, ठीक है? It will be repeated in standard 10th also. यहाँ तक बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now come to the main section. This section is degradation of soil and conservation measures, ठीक है? Now degradation of soil and conservation of measures. So पहला सेक्शन है degradation of soil, यानी इस अर्थ पर जहां पर भी जमीन है, सॉइल है, वो क्या हो रही है? डिग्रेड हो रही है, उसकी क्वालिटी खराब हो रही है, मिट्टी नष्ट हो रही है, सो दैट इज व्हाट डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। अब सॉइल डिग्रेड यदि हो जाएगी तो आने वाले 40-50 सालों के बाद इस अर्थ पर जो भी जमीन है, जो भी मिट्टी है, उसकी क्वालिटी खराब हो जाएगी, और उसकी क्वालिटी खराब होने के कारण क्या होगा? उस जमीन पर अच्छे से खेती बाड़ी नहीं हो सकती और फसलें नहीं उगेंगी। इसलिए हमें क्या करना है? सॉइल को खराब होने से बचाना। तो जमीन को या मिट्टी को खराब होने से बचाने की प्रोसेस क्या कहलाएगी? कंजर्वेशन मेजर्स। आर्यन एंगलवार, इतनी बात आई समझ में? Yes, sir. वेरी गुड। बेटा जरा अपना वीडियो ऑन करो तो। आर्यन एंगलवार, स्विच ऑन योर वीडियो। Yes, sir. वेरी गुड, कर लिया? अच्छा, हियर इज आर्यन, गुड,
ओके, ठीक है, थैंक यू। चलिए, सो डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेथड। Soil erosion and depletion are the major threats to soil as a resource. ठीक है, तो soil is valuable resource for human being, क्योंकि हमारा जितना भी वेजिटेशन है, एग्रीकल्चर है, वो सब किसके दम पर चलता है? सॉइल के दम पर चलता है। सो सॉइल इरोजन एंड डिप्लीशन, सॉइल इरोड हो रही है और उसका लगातार डिप्लीशन हो रहा है। So this is a major threat, ये हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। Both human and natural factors, ठीक है, both human and natural factors can lead to degradation of soil, ठीक है। So soil के degradation में, soil खराब होने में human factors भी responsible हैं और नेचुरल फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल है। नाउ फैक्टर्स विच लीड टू सॉइल डिग्रेडेशन, फैक्टर्स विच लीड टू सॉइल डिग्रेडेशन आर, तो सॉइल डिग्रेडेशन में कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं? सो विच फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल डिग्रेडेशन? डिफॉरेस्टेशन। Okay, factors which led to soil degradation are deforestation, overgrazing, overuse of chemical fertilizers or pesticides, rainwash, landslides and floods. अब आप लोगों को ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ओके, mention the factors or what are the factors leading to degradation of soil? What are the factors leading to degradation of soil? Soil के degradation में कौन कौन से factors responsible हैं? इतनी बात आई समझ में? सोनू तिवारी, बात समझ में आई? सोनू तिवारी, did you understand? Yes sir. Yes sir, understand. Now, so these are the factors. Now the methods for soil conservation. अब किसके लिए? soil conservation के लिए methods. Sujal, which is the first method? Sujal Thire, which is the first method written here? Sujal Thire, Nitya Vadaskar, which is the first method? Nitya Vadaskar, reply. Mulching. Mulching. Sujal Thire, सुजल, आपका टीचमेंट में नेम सुजल का सुजल का एस अभी भी स्मॉल आ रहा है, तो क्लास के बाद उसको करेक्ट कर लेना। यस सर। ठीक है, नाउ स्विच ऑफ। So the first method is a mulching. What is mulching? The bare ground between plants is covered with a layer of organic matter like straw. Now between plants का मतलब जब किसान फसल लगाता है तो फसल की अच्छी ग्रोथ के लिए जिस फसल को लगाया है उसके पौधे के बीच में सफिशिएंट गैप रखा जाता है। ठीक है, अब जब वो सफिशिएंट गैप रखते हैं तो उस गैप में क्या होता है, बहुत सारे अदर अनवांटेड प्लांट्स या अनवांटेड क्रॉप्स या अनवांटेड स्पीशीज ऑफ वेजिटेशन उगाती है, जिसकी
किसान को खेती करने की जरूरत नहीं है। जिसको हम बोलते हैं ना फसल के बीच में क्या हो गया है, घास फूस और चारा लग गया, ठीक है, वीड्स। तो उसको बचाने के लिए अब वो क्या करेगा, जब ऐसा चारा लग जाता है, अनवांटेड प्लांट्स भी उगाते हैं, तो वो क्या करते हैं, सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेंगे। जब वो सॉइल के न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करेंगे तो क्या होगा, प्लांट को जो न्यूट्रिएंट मिलना चाहिए वो पूरा न्यूट्रिएंट प्लांट को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस सब से बचने के लिए कौन सी मेथड यूज करते हैं, मल्चिंग। तो मल्चिंग में क्या होगा, बेयर ग्राउंड मतलब जो खाली पड़ी जमीन है, ठीक है। तो द बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट्स is covered with a layer of organic matter like straw। जो खाली पड़ी जमीन है उसमें क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर जो कटी हुई घास है या पुराना चारा है उसको बिछा देते हैं। अब क्योंकि वो चारा जड़ नहीं पकड़ पाएगा तो ऊपर जब बिछा हुआ रहेगा तो नीचे उसमें से कोई भी अनवांटेड प्लांट उगेगा नहीं। It also help to retain the soil moisture, ठीक है। और वो क्या करता है, सॉइल मॉइस्चर यानी जमीन में जो पानी है उसको भाप बनकर उड़ने नहीं देता। इतनी बात आई समझ में? Yes, yes. सुजल, Yes, sir. सुजल फिरे, तुम्हारे माइक में कहीं कोई प्रॉब्लम है? जैसे ही तुम्हारा माइक ऑन होता है बहुत जम के आवाज आती है, थोड़ा सा ध्यान से यूज करो। नाउ नेक्स्ट मेथड इज काउंटोर बैरियर। काउंटोर बैरियर में क्या होगा, स्टोन्स, ग्रास, सॉइल आर यूज्ड टू बिल्ड बैरियर्स अलोंग काउंटोर्स। तो काउंटोर्स का बेसिकली मतलब होता है जमीन में, एग्रीकल्चरल लैंड तो बहुत बड़ा है, तो उस एग्रीकल्चरल लैंड में पानी का बहाव, वाटर का फ्लो जिस तरफ है, उस एग्रीकल्चरल लैंड में पानी का बहाव मतलब वाटर का फ्लो जिस साइड है, ठीक है, तो पानी के बहाव की दिशा को बोलते हैं काउंटोर। जहां से पानी बह के जा रहा है वो हो गया काउंटोर। अब क्या होगा, जब एग्रीकल्चरल लैंड में पानी बहुत तेजी से बहेगा, वाटर की स्पीड काफी ज्यादा होगी, तो उसके कारण क्या होगा, जब वाटर जमीन में फ्लो हो रहा है, जब पानी जमीन में फ्लो हो रहा है तो तेजी से बहता हुआ पानी क्या करता है, मिट्टी का कटाव कर देता है, ठीक है। और उसके कारण खेत की जो उपजाऊ मिट्टी है वो बह करके और कहीं नीचे चली जाती है। तो उसको रोकने के लिए, उस कंडीशन को रोकने के लिए क्या करते हैं, काउंटोर बैरियर्स बनाते हैं। तो जहां पर भी पानी तेजी से बह रहा है वहां क्या, स्टोन्स, पत्थर जमाएंगे, ठीक है, या फिर क्या जमाएंगे, घास जमा देंगे। अब पत्थर और घास नहीं मिल रही है तो खेत की मिट्टी से क्या बना देंगे, मेड़ बना देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से पानी जहां से बहुत ज्यादा फ्लो होकर के जा रहा है, जिसके कारण सॉइल इरोजन होता है, उसको रोकने के लिए बैरियर्स मतलब रुकावट का रास्ता बनाएंगे। सो दैट इज नोन एज व्हाट, काउंटोर बैरियर। इतनी बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Okay, good. And trenches are made in front of the barrier to collect the soil. अब ट्रेंचेस मतलब उस बैरियर के सामने क्या खोद देंगे, खंती, थोड़ी सी खाई लगा देते हैं, गड्ढा बना देंगे, है ना। तो उसके कारण क्या होगा, वहां पर पानी इकट्ठा हो जाएगा और वो जो पानी है वो नीचे जमीन में परकोलेट होगा, जमीन में नीचे चला जाएगा। तो इट हेल्प टू रिटेन वाटर इन द वेल्स एंड ट्यूबवेल्स। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, रॉक डैम।
रॉक्स आर पाइल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर। ठीक है, बहुत सारी जगहों पर बड़े बड़े पत्थर बिछाने पड़ते हैं। ठीक है, यदि छोटे छोटे स्टोन, ग्रास या सॉइल से काम नहीं चला तो क्या बनाना पड़ेगा? रॉक डैम। दिस प्रिवेंट्स गलीज एंड फर्दर सॉइल लॉस। ये क्या करता है? गलीज यानी छोटी छोटी गलियां बनाने में बंद कर, गली यानी खेत में बड़ा सा नाला पड़ जाए उसको रोकता है और सॉइल के लॉस को रोकता है। इतनी बात आई समझ में? Yes, sir. नेक्स्ट टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग में क्या होगा? जो माउंटेनियस रीजन्स हैं, जो पहाड़ी इलाके हैं, पहाड़ी इलाकों में क्या बनाएंगे? टेरेस, सीढ़ी नुमा खेत बनाएंगे। सो ब्रॉड फ्लैट स्टेप्स और टेरेसेस आर मेड ऑन द स्टीप स्लोप so that flat surfaces are available to grow crop. It reduces surface runoff and soil erosion. ये क्या करता है? सरफेस रनऑफ। जब फ्लैट बना देंगे तो पानी के बहने की स्पीड कम हो जाएगी और क्या रुकेगा? सॉइल इरोजन रुक जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Now, just a minute. This sentence is grammatically correct. Now you can see this video how the terraces work out. What is she planting? Spring. She is planting which crop? She is planting which crop? Taza is spring plant. Spring. No. Taza is spring. सर पैडी। पे लिखा हुआ है सर राइस। राइस। ये कौन सी? सर राइस। धान की फसल लगाई जा रही है। किसकी फसल? धान। धान मतलब राइस। तो राइस का कल्टीवेशन ऐसे होता है, पहले एक छोटे से खेत में बीज डाल करके धान के पौधे उगा लिए जाते हैं। तो जहां पर पौधे उगा लेते हैं उसको बोलते हैं नर्सरी, राइस की नर्सरी। फिर बड़े बड़े खेतों में इस तरीके से पूरा पानी भर के और नर्सरी से पौधे उखाड़ करके कहाँ लगाए जाते हैं? यहाँ पर इस धान में लगाए जाते हैं। इज इट क्लियर? Yes, sir. Spring rice planting is a common sight in lowland China. By planting rice on steep level, they took hundreds of years to build and represent man's ingenious adaptation to a hostile natural environment. Watching spring rice planting on terraces is like watching a giant sculpture in dynamic motion. Before any planting can be done, the terraces must first be flooded by a complicated system of channels. When water reaches a certain depth on a higher terrace, the excess water spills over to a lower terrace. To achieve a uniform water depth on every level, the terraces must follow this. कैसा दिखाई दे रहा है? Beautiful. First, the hill. This is what? Sir, it is looking like step farming. Sir, this is step farming. This is what? Step farming. Step farming is what? The terrace farming. ठीक है, दोनों सेम चीज है। Got it?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए, समझ में आ गया कैसे होता है? Yes, sir. Yes, yes, sir. इस तरीके से टेरेसेस बनाए जाते हैं, ठीक है। चलिए, नाउ सो नेक्स्ट इज द इंटरक्रॉपिंग। व्हाट इज द नेक्स्ट मेथड? Intercropping. So different crops are grown in alternate rows and are sown at different times to protect the soil from rain wash, ठीक है। तो different crops are grown in alternate rows। alternate rows में मतलब एक रो एक क्रॉप की लगाई, उसके बाद में दूसरी रो दूसरी क्रॉप की लगाई। इस तरीके से अलग अलग रोज में क्या लगाते हैं? क्रॉप। यानी सेम एग्रीकल्चरल लैंड में उसी एक खेत में 2 या 3 फसलें लगाते हैं, ठीक है। सो 2 or 3 rows are of one crop and after that maybe the 2 or 3 rows of another crop. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Next is the contour plugging. Next is contour plugging. Now what is contour plugging? Plugging parallel to the contour of a hill slope to form a natural barrier for water to flow down the slope, ठीक है। अब contour plugging में बेसिकली करेंगे क्या, ठीक है। contour plugging में क्या करेंगे, ठीक है। सो just a minute। अब ध्यान दो इस पिक्चर को, ठीक है। अभी इसमें sir. क्या है कि एक ट्रैक्टर जो है वो जमीन को क्या कर रहा है? प्लग कर रहा है। क्या कर रहा है? Plug. अब काउंटर प्लगिंग का मतलब क्या होता है? मान लो जमीन में ये जो एग्रीकल्चरल लैंड है ना, काफी बड़ा सा खेत है, तो जमीन का जो नेचुरल ढलान है, यानी पानी कहां से? इधर से किसकी तरफ बह रहा है? इस डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो वाटर का फ्लो ऐसा है। अब यदि ये ट्रैक्टर से प्लगिंग भी कैसी होगी? इसी डायरेक्शन में होगी। तो यहां पर देखो ये प्लग है, प्लग की ब्लेड चल रही है, यहाँ गड्ढा लग रहा है। Yes, sir. जहाँ प्लग की ब्लेड चलेगी वहां पर क्या बनेगा? छोटी सी नाली बनेगी। Yes, sir. और ये प्लग क्या करेगा? दोनों तरफ मिट्टी जमाता चलेगा। Yes. उसके कारण क्या होगा कि इस एग्रीकल्चरल फील्ड में ऐसे अप एंड डाउन स्ट्रक्चर बनेंगे। इस एग्रीकल्चरल फील्ड में क्या बनेंगे? अप एंड डाउन। Up and down structure. इतना समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब यदि वाटर का फ्लो इसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में प्लगिंग की है, तो पानी को बहने को क्या मिल जाएगा? रास्ता मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? तो जब पानी को बहने के लिए एक सीधी सीधी नाली बनेगी तो क्या होगा?
वो सॉइल इरोजन करेगा। वो बहता हुआ पानी क्या करेगा? Soil erosion. Soil erosion. ठीक, तो उस सॉइल इरोजन से बचने के लिए, उस सॉइल इरोजन से बचने के लिए क्या करते हैं? वाटर का फ्लो जिस डायरेक्शन में है उसके परपेंडिकुलर में क्या करेंगे? उसके प्लगिंग करेंगे, ताकि क्या होगा कि पानी को बहने के लिए क्या नहीं मिलेगा? रास्ता नहीं मिलेगा। जब पानी को बहने के लिए, जब पानी को बहने के लिए क्लियर कट रास्ता नहीं मिलेगा तो वो क्या नहीं कर पाएगा? सॉइल इरोजन नहीं कर पाएगा। इतनी बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ये देखो, Yes, sir. I got it. दिस इज व्हाट प्लगिंग हो रहा है। क्या हो रहा है? Plugging. समझ में आया? Yes, Yes, sir. Yes, sir. नाउ ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये ग्रीन कलर का, दिस इज द ट्रैक्टर और दिस इज व्हाट? प्लग। ये क्या कहलाएगा? Plug. प्लग। देखो कितना अच्छा मैकेनिकली वहीं के वहीं वो पलटना शुरू हो गया। Got it? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. This way is what? इसको क्या कहते हैं? काउंटर प्लगिंग। Then shelter beds. So in the coastal and dry regions, in the coastal and dry regions, जो coastal regions हैं, है ना, और जो सूखे इलाके हैं जहां पर क्या होता है? डेजर्ट काफी बड़ा है, तो जो डेजर्ट वाले इलाके हैं, जो कोस्टल रीजन है, वहां पर क्या करते हैं? रोज ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड। ठीक है, खेत के चारों तरफ पेड़ लगाए जाते हैं टू चेक द विंड मूवमेंट, ताकि जो तेजी से चलने वाली हवा है उसकी स्पीड को क्या किया जा सके? रोका जा सके। ठीक, एंड इट ऑल्सो प्रोटेक्ट द सॉइल कवर। तो ये हो गए हमारे क्या? डिफरेंट मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। इज इट क्लियर अप टू दैट सेक्शन? Yes, sir. Yes, sir. Now next topic. Yes, sir. Yes, Next sir. topic is related to water. Yes, who is Sheetal Rathore? Sheetal, switch on your video, beta. I want to see who is Sheetal. Yes, video on kara. Vani, stop talking. Then I am not speaking anything. No, then who is Varsha Yadav? Yes, Sheetal, switch on the video. एक मिनट, दिखाई तो नहीं दे रही है। हाँ, now, so she is Sheetal. Okay, good बेटा. Now you can switch off the video. वीडियो बंद कर लो अभी। चलिए, so next section is water. Sheetal, वीडियो बंद करो। Now next is water. Water is a वाइटल रिन्यूएबल रिसोर्स। ठीक है, वाटर जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। 3/4 of the earth surface is covered with water. Because of that it is called as water planet. In the primitive oceans
Around 3.5 billion years back, the life began from water. Even today, the ocean water cover around 2/3 of the Earth's surface. ठीक है, ये सब छोटा छोटा डेटा है, एक कुछ खास इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है। हाँ, यहाँ पर ये जरूर है, ठीक है। Water can neither be added nor subtracted. Its abundance only seems to vary because it is in constant motion, cycling through the ocean, the air, the land, and back again through the processes of evaporation, precipitation, and runoff. This is known as what? Water cycle. इस entire condition को क्या कहते हैं? Water cycle. यहाँ तक बात नहीं समझ में? Water cycle. Yes. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Humans use huge amount of water. Humans use huge amount of water not only for drinking and washing, but also in the process of production. Water for agriculture, industries, generating electricity through reservoirs of dam are the other uses. Okay, increasing population, rising demand of food and cash crop, increasing urbanization, rising standard of living are the major factor leading to the shortage of supply of fresh water, either due to drying of water resources or water pollution. ठीक है, so shortage of water, पानी की कमी क्यों हो रही है? ठीक है, so why there is a shortage of water, पानी की कमी क्यों हो रही है? ठीक है, so पानी की कमी क्यों हो रही है? so पानी की कमी होने का मेन कारण क्या है? These. What are the reasons for the shortage of water? Increasing population, rising demand for food and cash crop, increasing urbanization, and rising standard of living. These are the major factors responsible for the shortage of water. यहाँ तक बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसके बाद ये प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, छोटा सा सेक्शन है, आप खुद रीड आउट करना। देन कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, ठीक है, वाटर रिसोर्सेज का क्या करना है? हमें कंजर्वेशन करना है। एक छोटा छोटा सेक्शन है। डू यू नीड माय हेल्प? No, sir. No, sir. No, sir. अब इसमें what are the ways, है ना? What are the ways for the conservation of water? So पहला क्या है? Water harvesting. ठीक, then canal used for irrigating field should be properly lined to minimize losses by water seepage. इसका मतलब क्या? कैनाल्स, कैनाल्स मतलब नहरों के द्वारा, ठीक है, तो नहरों के द्वारा यदि क्या किया जा रहा है? इरिगेशन, किसके द्वारा? कैनाल के द्वारा। तो कैनाल के द्वारा जब इरिगेशन करेंगे तो कच्ची कैनाल नहीं होना चाहिए। कैनाल कैसी होनी चाहिए? पक्की कैनाल होनी चाहिए, लाइंड, है ना? अभी कैसे? जस्ट अ मिनट, show you the video unlined canal. ठीक, अब unlined canals कैसी होंगी? Just a minute, okay? Now, Grammarly can help you write quickly and confidently, so you never have to slow down at work. Stay on top of email. Hello everyone, welcome back to my channel. Guys, आज के वीडियो में हम कैनाल लाइन। आप ध्यान से देखो बेटा, ये क्या हुआ? जमीन को खोद करके और क्या बनाई गई? कैनाल, नहर दिख रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी ये कैसी है?
Yes, sir. कच्ची है ना, मिट्टी से बनी हुई कैनाल sir. है। अब जब कैनाल Yes, sir. मिट्टी से बनी हुई है और इसी कैनाल में यदि पानी छोड़ देंगे, मिट्टी से बनी हुई इसी कैनाल में यदि पानी छोड़ देते हैं तो क्या होगा? बहुत सारा पानी सीपेज के द्वारा जमीन के अंदर चला जाएगा। Yes, sir. Sir. Yes, sir. बहुत सारा पानी सीपेज के द्वारा कहाँ चला जाएगा? जमीन के Soil अंदर के चला अंदर। है ना? तो उस पानी का कोई खास यूज नहीं बचा, इसलिए कैनाल्स को क्या करते हैं? लाइनिंग। तो लाइनिंग ऑफ कैनाल का मतलब कैनाल्स को क्या करना? पक्का करना। तो यहाँ पर आप देखो, कैनाल्स को सीमेंट और कंक्रीट से क्या कर रहे हैं? पक्का। पक्का। अब इसको सीमेंट कंक्रीट से जब पक्का कर देंगे तो क्या नहीं होगा? वाटर का सीपेज नहीं होगा। ठीक है। तो जब वाटर का सीपेज नहीं होगा, दैट इज व्हाट? लाइनिंग ऑफ कैनाल। ये क्या कहलाता है? Lining of canal. Lining Of canal. बात समझ में आ गई? Of canals. बात समझ में आ गई? Yes, sir. ठीक। Yes, sir. This is also a way Yes, to sir. stop the Yes, sir. wastage of water. चलिए, so we are winding up the session here only, बेटा। ठीक है? Because it is already Okay, sir. 9:30. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.